برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر ہونے والے احتجاج پر پاکستان کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستانی سیاسی جماعت کے برطانیہ میں آفیشل اکاؤنٹ کے ذریعے مظاہرین کو جمع کیا گیا۔ احتجاج کے دوران چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی گئی۔ فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کرنے کی کھلی دھمکی بھی دی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے اس سنگین دھمکی کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر ہونے والے احتجاج پر پاکستان کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستانی سیاسی جماعت کے برطانیہ میں آفیشل اکاؤنٹ کے ذریعے مظاہرین کو پہلے جمع کیا گیا اور پھر اس کے بعد احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کے دوران چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی گئی۔ فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کرنے کی کھلی دھمکی بھی دی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے اس سنگین دھمکی کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں برطانیہ کی شہر بریڈفورڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر ایک پارٹی نے احتجاج کیا تھا اور اس سیاسی پارٹی کا جو گٹھ جوڑ ہے بیرونی آقاؤں سے وہ اب واضح ہو گیا ہے۔ کس طرح سے سوشل میڈیا ویب سائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ایک خاص ایجنڈے کو مضمون سازش کے تحت اس ایجنڈے کو لے کر چلا جاتا ہے اور لوگوں میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس پر پاکستان کی جانب سے گہری اور شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور پاکستانی سیاسی جماعت کے برطانیہ میں آفیشل اکاؤنٹ کے ذریعے مظاہرین کو جمع کیا گیا۔ احتجاج کے دوران چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی گئی۔ فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کرنے کی کھلی دھمکی بھی دی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے اس سنگین دھمکی کا سخت نوٹس لیا ہے، اور آپ اپنی ویب سائٹ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف ویب سائٹس کے اوپر جس طرح سے سوشل میڈیا ہینڈلرز پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے اور جس طرح سے دھمکیاں دی گئیں، جس طرح سے ایک نیریٹو کو بیچا گیا وہاں پر، اور جس طرح سے پاکستان مخالف نیریٹو کو یہاں پر بیان بازی کی گئی، اس کو اپنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ معصوم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ان ٹویٹس کے ذریعے آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے بیرونی آقا کے ایما پر یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک پاکستانی سیاسی جماعت اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر، ان کی ایما کے اوپر یہ کام کر رہی ہے اور اشتعال دلا رہی ہے پاکستان کے اندر موجود لوگوں کو بھی اور باہر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی۔ کون اس کے پیچھے ہے، یہ بھی ایک گہرا سوال ہے۔ کون ان کے ہینڈلرز ہیں، کون ان کو فنڈنگ کرتا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، یہ بھی وہ سوالات ہیں جس کی واضح طور پر بتا چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، اور اس بارے میں واضح طور پر اشارہ بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں، اور پاکستانی قونصل خانے کو اس پر نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے وہاں اس کے باہر احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے، اور جس طرح کی لغو باتیں کی گئی ہیں، جس طرح سے جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اس پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور جو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی وہ جو پاکستان کے مفاد میں نہیں وہ چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور تبدیلی اور جمہوری نظام کے اندر ووٹ سے ہی تبدیلی ہوتی ہے، اس بات کی واضح پاکستان نے بارہا مرتبہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے اور واضح الفاظ میں پیغام بھی پہنچایا ہے کہ پاکستان میں جو تبدیلی ہے وہ ووٹ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک جمہوری ملک ہے، قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے، قانون کے مطابق جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں، عدالتیں کیسوں کو ہینڈل کرتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں، اس پر منصف جو ہیں وہ انصاف فراہم کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی شہری کی خواہش کی بنیاد پر، کسی بھی سپورٹر کی خواہش کی بنیاد پر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح کی جو بیرونی آقاؤں کی ایما کے اوپر جو احتجاج ہو رہے ہیں، اس پر پاکستان نے گہری تشویش کی ہے، اور اس کے تانے بانے کس طرح سے ہمارے ہمسایہ ملکوں سے ملتے ہیں، پروپیگنڈا ایجنسیز سے ملتے ہیں، اس حوالے سے پوری پریس کانفرنس بھی موجود ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جس کے بارے میں انہوں نے تمام باتیں کی ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹویٹ کے اکاؤنٹس جو ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس ہینڈل ہوتے ہیں،
किस तरह से एक नैरेटिव को बिल्ड किया जाता है, किस तरह से उनकी शेयरिंग होती है, किस तरह से लोगों में इस तासुब को फैलाया जाता है, उनकी फीडिंग की जाती है और उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, एक पूरी एक सोशल मीडिया जो ट्रोल्स हैं उनको चलाया जाता है और पाकिस्तान किस तरह से इन तमाम हथकंडों के साथ लड़ रहा है। जो ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए एक ख़ास एजेंडे के तहत, और इसी एजेंडे का एक हिस्सा जो है वो ब्रेडफुट का एहतजाज है, जिसके अंदर अजीब बातें की गई, जिसमें काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की गई फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ख़िलाफ़, बल्कि इश्तियाल अंगेज़ बयानात भी दिए गए और ना सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए गए बल्कि कत्ल करने की यानी कार बॉम्ब धमाके में कत्ल करने की खुली धमकी भी दी गई। इसी पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, जो एक एजेंडा हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बैरूनी आकाओं के इमा के ऊपर एक सियासी पार्टी पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के ऊपर अमल पैरा है और कोशिश कर रही है इस निज़ाम को डिस्टेबल करने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में अब वक्त है कि बरतानिया को ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ जो दहशत गर्दी को फरोग देते हैं, जो लोगों को तरगीब देते हैं, जो लोगों को जो है वो उकसाते हैं, उनके खिलाफ बरतानवी कानून के मुताबिक जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के पास वैसे भी बरतानिया के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मौजूद है, जिसके तहत जो है मतलूबा अफराद और जो इस किस्म के शरपसंद अनासर हैं, कैदियों का तबादला जो है वो होता रहा है माजी में, अब भी होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल में ये एक सियासी जमात है। अब मेरे ख्याल में इसको सियासी कहना जो है ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। अब ये एक शरपसंद जमात है और जो शरपसंद होते हैं, अभी माजी में एक हमने दीनी जमात को देखा, उन्होंने शरपसंदी के कुछ रास्ते को अपनाया, नतीजा ये हुआ कि उनको कालादम करार दिया गया। तहरीक इंसाफ ने जो कुछ 9 मई को किया वो मेरे ख्याल में उसका कोई अशरे अशीर भी नहीं था, जिस तरीके से अभी लबैक को जो है वो कालादम करार दिया गया। तो फिर इसका मतलब यह है कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करती है, आए दिन जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करती है, यहाँ जो है वो कभी कफन पहन के जो है वो आया जाता है, तो कभी सरकारी ज़राए को इस्तेमाल किया जाता है, कभी जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को फरोग दिया जाता है, तो कभी अफगानिस्तान के आए हुए लोगों को पाकिस्तान के कौमी तराने के ऊपर न खड़े होने के बाद भी उनकी पजीराई की जाती है। ये वो तमाम बातें हैं जो मुल्क मुखालफत को जो है वो मेरे ख्याल में बड़ा उसकी तरफ वादे इंडिकेटर है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। दूसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल है कि जिस तरह से दीगर जमातों को माजी में इन्होंने इस किस्म की शरपसंदी की, उनके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की गई, कालादम करार दिया गया और उन लोगों को जो सजा है वो मतलब सुनाई गई। लेकिन अभी तक जो 9 मई के हवाले से जो मरकजी मुलजमान हैं उनके केस जो हैं वो तातुल का शिकार हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा आईनी अदालत से भी ज्यादा जरूरत थी वो ऐसे जो जराइम थे जो कि मेरे ख्याल में एक रियासत और पाकिस्तान की जो सालमियत के खिलाफ किए गए, उनको मेरे ख्याल में पकड़ना जो था वो वक्त का तकाजा था। आज भी हम मेरे ख्याल में ताखीर नहीं हुई, हमें इसके ऊपर जो है फौरी तौर पर जो है वो कोई रद्द अमल देना पड़ेगा। इस किस्म की पब्लिक के सामने बात करना और मीडिया के ऊपर बात करना और इसी तरीके से माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना, ये तमाम बातें जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये जमात जो है इसके अंदर कई ऐसे अनासर मौजूद हैं जो भारत को खुश करना चाहते हैं, इजराइल के एजेंडे को अमल करना चाहते हैं, क्योंकि आज इजराइल और भारत जो है वो हमारे आर्मी के सरबराह के जो है वो मुखालिफ हैं, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने एक वक्त में 2 ममालिक के साथ जंग लड़कर और उसको जीत कर साबित किया कि पाकिस्तान इज सेकंड टू नन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी जो है वो जाहिलियत का मुकाबला जो है चौमुखी लड़ाई जो है वो लड़ सकता है अकेले तनहा। लेकिन अब उन्होंने ये सोचा है कि अंदरूने मुल्क जो है अपने ही अवाम को सबवर्जन के जरिए बाकायदा मुक्ति बहानी दोयम जो है वो दोहराने की साजिश है। तो ये ऐसे लोगों के पासपोर्ट कैंसिल किए जाएं, पाकिस्तानी शरीयत इनका बाकायदा फेस रिकग्निशन के जरिए इनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए, नादरा इनको ब्लॉक करे और इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट के ऊपर जो है
थ्रू इंटरनेशनल पुलिस, जिसको इंटरपोल कहते हैं, उनके जरिए जो है इनका डिमांड करे, इनको वापसी का मुतालबा करे और फिर पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक सख्त तरीन इंसाफ जो है वो अमल में आए। अच्छा सर, जिस तरह से हमने देखा कि पहले दाखिली सतह के ऊपर इसको पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश की, अब देखा कि खारजी महाज पे पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से हमारे वज़ीर दाखिला भी विज़िट कर रहे हैं, एक पाकिस्तान के नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया में पैगामात हैं, हालिया लीबिया के साथ जो मुआहिदा हुआ, पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पजीराई करे, अब खारजा महाज पर भी इसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। और ये चीज़ें तो हमने तब देखी थी जब भारत में फॉल्स फ्लैग होता था तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड होता था। आज ये नाम निहाद पाकिस्तानी जो हैं ये इस तरह का एहतजाज करें? जी, ये कोई आज की बात नहीं है। आपने माजी में देखा कि जब पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिल रहा था, जो कि इस कौम के ऊपर खर्च होना था, इसकी गरीब कौम के, इसकी बेहतरी के लिए, तो उस टाइम पे कौन लोग थे जो धरना दे के बैठ गए थे IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने? कौन लोग थे जो कहते थे कि पाकिस्तान को कर्जा न मिले? कौन लोग थे जिनकी बकायदा, आपको याद ही होगा कि शौकत तरीन की जो बातें थी वो सामने आ गई थी और किस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि जी पाकिस्तान को कर्जा मत दिया जाए, और वहाँ जो उस वक्त के वजीरे जैसे खजाना KP और वजीर खजाना पंजाब, उनको हिदायत जारी की गई थी कि आपने पाकिस्तान को कर्जे के लिए जो है वो आप IMF को कहें कि वो ना दे। फिर उसके बाद आप अगर मजीद इसमें देखें तो जब पाकिस्तान के आर्मी के मुतल्लिक एक बाकायदा साजिश वाली मुहिम चलाई गई, और अब वो साजिश क्या थी, वो बाकायदा मोबाइल गाड़ियों के ऊपर स्क्रीनें लगा के गाड़ियों के ऊपर उनको जो है वो दिखाया गया, बताया गया कि जो ये सारा सिलसिला है पाकिस्तान के खिलाफ एक उन्होंने बाकायदा कार्रवाई की, और वहाँ बाकायदा यूरोप के अंदर, बरतानिया में, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर मोबाइल गाड़ी अपना स्क्रीन्स लगा के पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और बिल्कुल मनगढ़ंत और लग प्रोपेगेंडा किया गया। मेजर आदिल राजा का याद रख लें कि आदिल राजा जैसा भगोड़ा और गद्दार मुल्क जो है, उसने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ जो है झूठी कैंपेन चलाई, उनका इलेक्शन के अंदर असरअंदाज होने की बातें की, दीगर बातें की, तमाम बातें झूठी साबित हुई। बरतानवी अदालत ने उस गद्दार वतन आदिल राजा को बाकायदा सजा सुनाई, उनको जो है वो हर्जाना का जो है हुक्म दिया, और उसके बाद आदिल राजा ने ये तस्लीम किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसने ये तस्लीम किया कि हाँ, मैंने जितने भी इल्जामात लगाए थे राशिद नसीर साहब जो साबिक सेक्टर कमांडर पंजाब ISI थे, तो उनके ऊपर जो इल्जामात थे वो सारे मनगढ़ंत और झूठ थे। इसी तरीके से अभी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ और DGI और ज्वाइंट चीफ के मुतालिक कहा जाता है कि जी वो तो बैरून मुल्क मुकीम है। अभी मेरी एक पोस्ट जो थी वो 4 दिन कबल मिलियंस में गई, जिसके अंदर जनरल अशफाक परवेज कियानी के साथ में बैठा हूँ, और आपके लिए और नाजरीन के लिए बताता चलूँ कि अशफाक परवेज कियानी साहब जो है रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रावलपिंडी में मुकीम है, और ना वो उनके ऑस्ट्रेलिया कभी गए हैं, मासवाए जिंदगी में बतौर आर्मी चीफ वो 3 दिन के लिए सरकारी दौरे पे गए, उसके बाद वो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए। मासवाए 4 दिन के लिए रिटायरमेंट के बाद वो मुल्क से बाहर गए, 4 दिन के लिए।